Good evening, dear students. Our today's topic is from classical mechanics for PG classes, and the topic is the equations of motion and first integrals. Dear student, it's a bit complex topic as well as it's also very important topic. प्यारे बच्चों, हम ये टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ का रहेगा, बट आई वुड लाइक टू अपील यू दैट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक and do not try to cram the topic and do not try to cram the terms which we are going to face in this topic. So let's start our topic, and in the beginning of our topic we consider some particular or specific case of a conservative central force. So here we are consider conservative central force. And dear student, we have many examples of this one, like electrostatic force, like gravitational force, but do not confine this problem just to these two forces. This problem is applicable for any type of conservative central force. And dear student, let's further assume that this force is having a potential, or the source of this force is a potential, and that potential is a function of, say, R only. So we have the center of force in which the potential is a function of R only. It does not depend on any other coordinate. तो अगर पोटेंशियल केवल R पे डिपेंड करेगी तो इससे क्या है कि हमारी जो प्रॉब्लम है, इट विल हैव ए स्फेरिकल सिमेट्री. मीन्स अब मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं अर्थ और सन सिस्टम को, विच इज़ ए केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ ऑल्सो ए कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स. सो अर्थ और सन सिस्टम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो जो पोटेंशियल होगा सन का एट द लोकेशन ऑफ अर्थ विल बी ए फंक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन. इट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एंगल, or there is no any angular dependence, and equivalently we can say that there is a spherical symmetry. Spherical symmetry means if we consider some axis, some coordinate axis, and if we rotate the coordinate axis through any angle, and if we rotate our system about any of the fixed axis through any angle, then there will be no any effect on the you can say the solution of our problem. Okay, so whatever the axis we choose, whatever the coordinate axis we select or choose, and if we rotate our coordinate axis through any fixed axis, then there will be no any change on the solution of the problem. And dear student, the angle associated with that rotation must be cyclic. एक डायग्राम हम बना लेते हैं for our simplicity. Suppose, dear student, we have a coordinate system. This one is our x-axis, this one is our y-axis, and this is our z-axis. And say at this origin we have the sun, and earth is rotating around the sun. So if we rotate this axis, if we rotate this coordinate system through any of the axis, the solution will be same. It doesn't depend on that rotation. So the angle associated with that rotation must be cyclic. So it must be kept in our mind. The angle is cyclic, and if angle is cyclic means the canonical conjugate momentum for that angle must be conserved. And dear student, as we are going to find the equations of motion, as our topic is suggesting, our topic is the equations of motion.
So first of all we have to write equations of motion, then I will let you know what are the first integrals related to those equations of motion. So dear student, for solving this type of problem which is having a spherical symmetry, it is always convenient to use spherical polar coordinates instead of Cartesian coordinate. And spherical polar coordinate, you know very well, there is an azimuth angle theta, a zenith angle phi, and a radial distance r. So you know r, theta and phi are our polar coordinates, spherical polar coordinates. Here theta and phi, theta is the angle, चलो हम यहाँ पे अर्थ बना ही लेते हैं, से दिस वन इज आवर ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ये समझ लीजिए इसको, ठीक है। और मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम अर्थ यहाँ है, सो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आवर एजीम्यूथ एंगल, एंड दिस एंगल इज फाई, द जेड एक्सिस मेकिंग विद दिस लाइन, दिस इज आवर आर। सो ये जो एंगल है हमारा, दैट इज आवर जेनिथ एंगल फाई। एंड डियर स्टूडेंट, फॉर आवर कन्वीनियंस हम क्या करते हैं कि जो हमारा एक एक्सिस है, पोलर एक्सिस, जो हम पोलर एक्सिस लेते हैं, उस एक्सिस को हम एल के साथ ले लेते हैं। एल मीन्स एंगुलर मोमेंटम। सो इसको हम एंगुलर मोमेंटम के साथ ले लेंगे। क्यों लेंगे? क्योंकि इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है वो इस केस में एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है, ठीक है। अब ये कंजर्व्ड क्वांटिटी क्यों है? तो इसके देखो एक कारण तो सीधा सा है कि हम सेंट्रल फोर्स के साथ डील कर रहे हैं, और सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है कि द मोशन विल बी कन्फाइंड टू ए प्लेन। सो इफ द मोशन इज कन्फाइंड टू ए प्लेन, इट मीन्स द एंगुलर मोमेंटम इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये एक ही बात है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो हमने रोटेट किया था, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट किया था, तो मैंने कहा था कि एक जो एंगल होगा दैट विल बी साइक्लिक, और साइक्लिक मीन्स द लैग्रांजियन विल डज नॉट डिपेंड ऑन दैट एंगल, एंड इफ लैग्रांजियन डज नॉट डिपेंड ऑन दैट एंगल, देन द canonical momentum conjugate to that angle, in this case that angle is theta, must be a conserved quantity, and that quantity is again our angular momentum. So by taking angular momentum along this polar axis, so this is our direction of angular momentum. अब सीधी सी बात क्या होती है कि what this implies, this implies our zenith angle phi becomes pi by 2, which is a constant quantity. So if phi is constant, then we just have two variables, which is r and theta, and our problem now reduced from 3 degree of problem to 2 degree of freedom. Initially it has a 3 degree of freedom problem, and now this becomes a 2 degree of freedom problem, because one of our coordinate or variable is constant. अब बच गए हमारे पास r और थीटा। तो यहाँ पे हम दो काम कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं कि हम r एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और थीटा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हम यहाँ पे इवेल्युएट कर लेंगे। एक तो काम ये है, यानी एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है, इसको मैं कह सकता हूँ से इस माई फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंडली हम क्या कर सकते हैं, हम r एज ए फंक्शन ऑफ थीटा भी पता कर सकते हैं। यानी हमारे पास दो ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या तो आप r ऑफ t एंड थीटा ऑफ t निकाल लीजिए, या आप r ऑफ थीटा निकाल लीजिए। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं। इसका क्या एडवांटेज है? इसका एडवांटेज है कि वी कैन रेडिली फाइंड आउट द वेलोसिटीज। हम इससे और इसके दोनों के साथ जो वेलोसिटी एसोसिएट है, हम वो दोनों निकाल सकते हैं बड़े आराम से, अगर हमारे पास ये दोनों हैं तो। और वेलोसिटी अगर हमें मालूम है तो उसका फायदा क्या मिलेगा? उससे हम ये बता सकते हैं कि हमारा पार्टिकल कहां पर होगा आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, या एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। इफ वी नो द इंस्टेंट ऑफ टाइम कि एट दिस इज टाइम, देन वी कैन प्रिडिक्ट द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, दैट वेयर विल बी द पार्टिकल।
and in this case we have advantages of getting the trajectory of the particle. So this will give us the trajectory, but in this case we lose an information, temporal information. So we got the trajectory. Suppose we have any specific kind of force or potential, and we got that the trajectory of the particle is ellipse, but we do not have any information about in which time or how much time was taken by the particle to traverse that ellipse. So we lost here temporal information. In this case we lost our information of the trajectory, but we have both the choices. Whatever the solution we require, whatever the final outcome we require, we have two choices here. So अब इसको हम इसको फाइंड आउट करने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले लैग्रांजियन लिखना पड़ेगा. सो द लैग्रांजियन फॉर दिस सेंट्रल कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स मोशन इज हाफ m in spherical polar coordinate. The Lagrangian is half m r dot square plus r square theta dot square minus the potential energy. So this is kinetic energy and this is potential energy. Now dear student, first start from the equation of motion for theta. The equation of motion for theta. So that will be d by dt curly L by curly theta dot minus curly L by curly theta is equal to 0. This is the equation of motion for theta. And dear student, after substituting the value of curly L by curly theta dot and minus curly L by curly theta, we get, because our topic is the equations of motion, so the first equation of motion is यहाँ से हमने शुरू कर दिया है. तो पहले बच्चों ध्यान से देखो, it becomes यहाँ से कर देते हैं d by dt of curly L by curly theta dot. अब आप इसको थीटा डॉट के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिएगा ये तो जीरो बनेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी थीटा डॉट, हियर इज थीटा डॉट, ये भी जीरो बनेगा. सो आपके पास आ गया हाफ m and in this case r square twice of theta dot and minus 0. आपके पास ये भी जीरो है. उसके बाद फिर आप इसको माइनस करके curly L by curly theta करेंगे. We have to differentiate the Lagrangian with respect to theta, but as you can see there is no any theta, and we have also mentioned this factor here that theta is, you can say, a cyclic coordinate, because our Lagrangian does not contain theta. It means theta is cyclic. So if theta is cyclic then this factor becomes 0. अगर आप इसका with respect to theta differentiate करेंगे you will get 0. So minus 0 is equal to 0. Now we lost our 2, then we got m r square theta dot d by dt equals 0. अभी मैं यहाँ पे दो काम करूँगा, ध्यान से देखना. पहली बात, what this implies? This implies m r square theta double dot equals 0. ये क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो. This is a second order differential equation. तो जैसे हमारे टॉपिक में द इक्वेशंस ऑफ मोशन, तो ये हमारी एक इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई है. टोटल हमारे पास दो इक्वेशन आएगी, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, दो हैं, एक r है और एक थीटा है. फाई कांस्टेंट हो गया तो अब उसको हम नहीं करेंगे. सो ये हमारी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन है, एंड दैट इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड डियर स्टूडेंट, अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू t, व्हाट यू विल गोट एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन करेंगे तो दे विल कैंसिल आउट, बोथ आर इनवर्स ऑपरेशन. एंड इन दिस केस व्हाट विल वी हैव, जीरो का इंटीग्रेशन जीरो आएगा, बट प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा. सो दिस टर्म बिकम्स ए कांस्टेंट एंड वी कॉल इट से L because it's angular momentum. How could we know that this is angular momentum? मैंने पहले बताया था, because theta is cyclic, so the
momentum canonically conjugate to theta will be conserved or constant. So this is L. So m r square theta dot is equal to L. पहले बच्चों एक ये नोट कर लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना हमारे टॉपिक में क्या है, द इक्वेशंस ऑफ मोशन एंड फर्स्ट इंटीग्रल्स. तो दिस इज आवर फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. यहां से आप थीटा डॉट की वैल्यू और निकाल लीजिए. थीटा डॉट विल बी इक्वल टू L अपॉन एम आर स्क्वायर. मुझे कई बार इसकी जरूरत पड़ेगी और ये बहुत बार ऐसा होगा कि कई बार हम थीटा डॉट की वैल्यू रख रहे हैं, कई बार हम उसको वापस थीटा डॉट में लेके आ रहे हैं, तो ये ऐसे चलता रहेगा, तो ये हमें नोट कर लेना है. सो दिस वन इज आवर फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन. नाउ एक यहाँ पे छोटा सा हम डाइग्रेशन लेंगे, थोड़ा सा इसमें एक बात समझेंगे. देखो डी बाई डी टी ऑफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इक्वल 0. तो अगर आप इस m को, क्योंकि कांस्टेंट आप इससे बाहर ले सकते हैं, उधर लेके जाएंगे तो 0 आएगा. फिर हम दोनों तरफ इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें आप हाफ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है वो इसके अंदर चला जाएगा. तो यहां से आप एक और भी बात लिख सकते हैं, और इसको मैं यहां लिख देता हूं, इधर से इधर. तो ये क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट इक्वल 0 और हाफ आर स्क्वेयर थीटा डॉट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. आप ऐसा भी कह सकते हैं. सो दिस क्वांटिटी विच वी हैव सेट कॉन्स्टेंट इज नथिंग बट, बच्चा लोग, दिस इज एरियल वेलोसिटी. एंड एरियल वेलोसिटी is, what is aerial velocity? Aerial velocity is the area swept by this radial distance r in unit time. And how much area has been covered by this r? It's like, suppose we have a stick. Oh, I have a stick here, scale. So this is a stick and its length is L. And if I drive this scale on any plane surface like this, so how much area has been covered by this stick in a unit time is its aerial velocity, and that will be a constant. It's nothing but it's Kepler's law, and it is also a property of central force, and it is also the statement of conservation of angular momentum. So it has so many names. Now come back to our equation of motion. Now we have to write equation of motion for r. So equation of motion for r, and that is d by dt of curly L by curly r dot minus curly L by curly r equals 0. अब आपको यहाँ पर थोड़ा डेरिवेटिव करना पड़ेगा. तो d by dt of curly L by curly r dot, this is our Lagrangian, and when we differentiate it with respect to r dot, this becomes 0 because it does not have any r naught. This becomes 0, it does not have any r naught, but this term will be differentiated, and that will be half m twice of r dot, which is the differentiation of r dot square. Okay, d by dt curly L by curly r dot is this one minus curly L by curly r. So when we differentiate this Lagrangian with respect to r, the first term becomes 0 because it's r dot not r. This term has a differentiation, this term has a differentiation because both are the function of r. So for this term it is half m r square का डेरिवेटिव हो गया 2r theta dot square as it is minus, and that minus becomes plus because we have minus curly L by curly r. So this is curly L by curly r, and this one is minus, and as minus is penetrating into this equation, this becomes plus, and curly v by curly r equals 0. Again we lost 2 in both these two terms, and we will get m r dot, and its time derivative is m r double dot minus m r theta dot square इक्वल्स माइनस करली v बाय करली r. ये देखिए मैं यहीं पे कर देता हूँ, एक स्टेप मैंने थोड़ा कम कर दिया है, हम इसको उधर ले जाएंगे, दैट इट बिकम्स माइनस करली v बाय करली r, एंड दिस इज यू नो
the negative gradient of potential, which is nothing but the force, as you know very well. So this one is our, you can say, first equation of motion. This is our second equation of motion. This is our second equation of motion. Now जैसे हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, उसको हमने जब एक स्टेप पहले इंटीग्रेट किया तो वी गेट फर्स्ट इंटीग्रल. इन सेम वे अब हम इससे भी हमारा एक सेकंड फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे. थोड़ा ध्यान से सोचिए, समझिएगा, ये वर्ड में जो है ना, सेकंड फर्स्ट इंटीग्रल मीन्स पहला फर्स्ट इंटीग्रल तो हमारा ये आ गया, जो दूसरा फर्स्ट इंटीग्रल है वो अभी यहां से आएगा, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है. ये भी कहां से आया था, इस इक्वेशन ऑफ मोशन से आया था. आप ये कह सकते हो कि ये और ये एक ही बात है, इक्विवेलेंट है दोनों. ठीक है. इन सेम वे इससे भी एक क्वांटिटी हमारी कंजर्व होगी, कांस्टेंट होगी. वो अभी हम देखते हैं कौन सी होगी. उसके लिए आपको इनमें थोड़ा सा माइनर चेंजमेंट करना पड़ेगा. सो एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू, ये उधर जाएगी टर्म तो प्लस की हो जाएगी, एम आर थीटा डॉट स्क्वायर. ये उधर आ गया तो जब यहां पे देखिए थीटा की वैल्यू रख दीजिए आप, तो थीटा डॉट का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यू विल गेट एल स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर आर रेज टू पावर 4. और जब आप इधर गए हैं तो ये ऑलरेडी यहां पे मौजूद है, दैट विल बी माइनस करली वी बाय करली आर. अब आप एक m से एक m काट दीजिएगा, r से एक r काट दीजिए, 3 आ गया. एंड यू कैन राइट इट एज m r डबल डॉट इज इक्वल टू l स्क्वायर बाई m r क्यूब माइनस करली v बाई करली r. ये हमारे पास आ गया. थोड़ा सा इसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा एम आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस करली बाई करली आर, एंड दिस बिकम्स एल स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर प्लस v. देखिए ये मैंने क्या किया, अगर आप माइनस करली बाई करली आर इस पे ऑपरेट करेंगे तो यही आएगा. देखो माइनस ये आ गया, करली बाई करली आर ये आ गया, v एज इट इज बच गया. अब ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r तो माइनस एल स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर, वो माइनस मैंने बाहर ले लिया. ठीक है. मैं थोड़ा उल्टा बोल गया कि ये जो टर्म है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r और आगे माइनस रखेंगे तो आपके पास ये टर्म आएगी. ठीक है. दिस इज द करेक्ट वन. मैं पहली जो स्टेटमेंट बोल गया तो थोड़ा गलत थी. सो डियर स्टूडेंट, अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ आप r डॉट से मल्टीप्लाई कर दीजिए. मैं यही कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय r डॉट विच इज नथिंग बट dr by dt. So this can be written as d by dt of half m r dot square is equal to minus curly by curly r l square by 2m r square plus v, and this r dot can be written as dr by dt. अब अगर आप राइट हैंड साइड की बात देखें तो सारी जो टर्म्स है ना, वो r का फंक्शन है और कोई यहां पर वेरिएबल नहीं है. तो ये जो मैंने एक डिफरेंशिएशन यूज किया, इसमें d बाई डी टी किया, इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल हम कहते हैं. अब मुझे इसका देखो करेक्ट टर्म मुझे अभी फिलहाल दिमाग से स्किप है. मेरा कहने का अर्थ ये है कि ये इसको मैं पार्शियल डेरिवेटिव में भी लिख सकता हूं और इसको मैं d बाई डी आर भी कर सकता हूं. तो ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हम यहां से कैंसिल कर देंगे. अब आपके पास क्या बचा, d बाई डी टी माइनस, और अंदर ये टर्म इधर है d बाई डी टी. तो आप उस सारे को जब इधर लेके आएंगे तो ये एक तो माइनस प्लस में बनेगा और साथ में d बाई डी टी बाहर आ जाएगा. तो आप इसको लिख देंगे d बाई डी टी ऑफ हाफ m r डॉट स्क्वायर प्लस l स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर. और l स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर को आप वापस इसमें थीटा डॉट की टर्म में लिखेंगे. ठीक है. तो इसके कई तरीके, या तो आप एक काम करिए यहां से, ये हमारे पास कहां गया थीटा, ये रहा थीटा डॉट. तो थीटा डॉट वाज l अपॉन m r स्क्वायर है. ठीक है. सो वी कैन एलिमिनेट l फ्रॉम हेयर. l इज m r स्क्वायर
theta dot. So m square r की पावर 4 theta dot square by 2 m r square plus v is equal to 0. Nothing has been left on the right hand side. मैंने यहाँ पे दो स्टेप एक में लिख दिए हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ. क्या क्या हमने कर लिया आर से, और ये डी आर को काट दिया. अब डी आर से कर लिया, क्यों कट गया? क्योंकि ये उधर जो फंक्शन है वो सिर्फ आर ही एक वेरिएबल है, इसलिए आप इस डिफरेंशियल को पार्शियल डिफरेंशियल भी लिख सकते हैं, या इसको डी बाई डी आर भी कर सकते हैं. देन हम इसको इधर लेके आएंगे, तो डी बाई डी टी, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है तो हमने इसको कॉमन ले लिया. माइनस था इन दोनों के साथ तो बन गया प्लस, तो हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस. अब एल को मैंने यहां से सब्सटीट्यूट किया एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, तो आपके पास बन गया एम स्क्वायर आर की पावर 4 थीटा डॉट स्क्वायर बाय 2 एम आर स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू 0. अब यहां पे जो कैंसिल हो रहा है वो कर दीजिए. तो देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर आ गया. आपके पास क्या आया? डी बाई डी टी हाफ एम आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस वी इज इक्वल टू 0. अब इसको हम दोनों तरफ विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे. काफी आगे, हाँ जी. अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर तो डी बाई डी टी कैंसिल विद आवर इंटीग्रेशन, एंड इन राइट हैंड साइड इंटीग्रेशन ऑफ 0 प्लस integration constant. So this term is a constant, and this term is half m r dot square plus half m r square theta dot square plus v is constant, and say this constant is represented by letter E, constant. Here E is the total energy. So dear student, this one is our सेकेंड फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ मोशन. तो जैसे आपने पढ़ा था ना, टॉपिक था हमारा द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड द फर्स्ट इंटीग्रल्स. तो फर्स्ट इंटीग्रल्स हमारे दो हो गए, एक तो ये हो गया, एक हमारा ये हो गया. इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हमारे पास दो हो गई, एक ये हो गई और ये एक हो गई. प्यारे बच्चों, ये दोनों इक्विवेलेंट है और ये दोनों इक्विवेलेंट है, अलग अलग नहीं, एक ही बात है. अब ये जो कांस्टेंट टर्म हमारे पास आई है, ये है टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी कैसे? देखो, ये तो दोनों है काइनेटिक एनर्जी टर्म और ये है हमारी पोटेंशियल एनर्जी टर्म. इसको हम दोनों के जोड़ को हम टोटल एनर्जी कहेंगे. अब ये जो एनर्जी कांस्टेंट है, ये हमारा इक्वेशन से आया है. इसको आप दूसरे तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी. क्यों? क्योंकि हमने शुरू में कौन सा फोर्स लिया है? कंजर्वेटिव फोर्स. अब देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स में ये प्रॉपर्टी है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, मैकेनिकल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी ए कांस्टेंट. एक तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं. दूसरा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा एल है, लैग्रांजियन, दिस वन इज आवर लैग्रांजियन. इसमें टी नहीं है, टी डिपेंडेंसी नहीं है. एंड एज यू नो फ्रॉम आवर प्रीवियस लेक्चर कि इफ टी इज साइक्लिक, इफ टी is not contained in L, then the total energy is a constant of motion, will be a constant of motion. So this is our total energy and which is a constant of motion. तो एक्चुअल में आपने क्या देखा है कि अब तक हमने क्या किया है, हमने एक एक इंटीग्रेशन किया है. एक इंटीग्रेशन भाई इस इक्वेशन ऑफ मोशन का कर दिया, एक इंटीग्रेशन हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन का कर दिया, एक एक इंटीग्रेशन कर दिया और हमारे पास कांस्टेंट आ गए. प्यारे बच्चों, जो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, अगर आप ध्यान से देखें तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी हमारी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. कैसे? देखो, हमारे पास दो वेरिएबल है, आर और थीटा. ये देखो, थीटा का डबल डेरिवेटिव है, तो दिस इज ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. दूसरा हमारा वेरिएबल है आर, इसमें देखो आर डबल डॉट, इसका दो बार टाइम डेरिवेटिव है, तो दिस इज ऑल्सो ए सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. एंड वी नो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि इफ वी हैव ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ second order, okay, if we have a differential equation of second order, then we need two constants for solving it, or in other words we can say we need two initial conditions. So in the same way, for this whole problem we need four constants or four initial conditions for solving this problem.
एंड व्हाट आर दीज कॉन्स्टेंट्स, दो तीन तो हम एक दो तो हमारे सामने ही आ गए, जैसे ई आ गया है, एक एल आ गया है, ये हमें चाहिएगा फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. सो लेट्स मूव अहेड. मैं इसको यहाँ से, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हम आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. इसमें भी मैं एक दो स्टेप्स आपके बीच में से कुछ स्किप करूंगा. देखो अपने को चाहिए क्या, आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. तो एक काम कर लेंगे, हम इस आर डॉट को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे को उधर ले जाएंगे. ठीक है. और अगेन देखो मैंने क्या किया था, यहां से मैंने क्या किया, यहां मैंने थीटा की वैल्यू रखी. आप ध्यान से देखो, फिर यहां मैं फिर से दोबारा से थीटा ले आया. अब आप कहेंगे यहाँ थीटा क्यों लेके, देखो ये बच्चे इसलिए बताना जरूरी था कि ये दोनों काइनेटिक एनर्जी टर्म है, इसलिए यहाँ थीटा लाना जरूरी था. ये वो काइनेटिक एनर्जी है, जैसे मान लो मैंने कहा ना अर्थ, मिटा दिया. तो अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, सो देयर आर टू वेरिएबल्स विच इज चेंजिंग, फर्स्ट इज आर एंड द सेकंड इज थीटा. सो थीटा के चेंज होने से भी उसमें एनर्जी है, आर के चेंज होने से भी उसमें एनर्जी, दोनों के चेंज होने से काइनेटिक एनर्जी है. तो ये जो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी टर्म्स है. यहाँ प्लीज कंफ्यूज मत होना कि जो थीटा डॉट है, जिसको हम जनरली एंगुलर वेलोसिटी कह देते हैं, ये वो एंगुलर वेलोसिटी नहीं जो अर्थ के एक्सिस पर उसके घूमने के कारण है. हम उसको तो कंसीडर ही नहीं कर रहे. हियर वी आर कंसीडरिंग अर्थ जस्ट एज ए पार्टिकल ऑफ मास सेम. रोटेशन ऑफ अर्थ इज कंप्लीटली इग्नोर्ड. बट विच रोटेशन? रोटेशन ऑन इट्स ओन एक्सिस. हियर वी आर कंसीडरिंग द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सो दिस टर्म इज रिलेटेड विद द वेरिएबल थीटा, एंड दिस काइनेटिक एनर्जी टर्म इज रिलेटेड विद द वेरिएबल आर. सो इसलिए मैं इसको लेके, अब हम इसको फिर से वापस थीटा डॉट की वैल्यू रख के इसको लेके जाएंगे, और हम लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ रखेंगे आर डॉट. देन वी विल हैव, अभी आप कर लेंगे, इसमें ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, यानी उस टर्म से और ये टर्म लिखना बड़ा आसान है. 2/m ई माइनस वी माइनस एल स्क्वेयर बाई 2m आर स्क्वेयर. कुछ नहीं करना, यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी है आपने. आप उधर लेके जाएंगे तो ई माइनस वी आएगा, और ये भी जाएगा तो ये टर्म भी माइनस की हो जाएगी, और फिर ये हाफ m जो इधर था ये उधर चला जाएगा. दैट विल बिकम 2/m एंड इट्स आर डॉट स्क्वेयर. जब हम स्क्वेयर हटाएंगे तो दैट विल बिकम अंडर रूट हियर. सो दिस इज आवर आर डॉट. नाउ आर डॉट इज dr बाय dt, so it will be our 2/m e minus v minus l square by 2m r square whole square root, and this can also be written as dt equals dr by 2/m e minus v minus l square by 2m r square, and it's under root. Now dear student, if we have to integrate this equation on both sides, so left hand side में हम शुरुआत करते हैं. हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? शुरुआत करेंगे हम t equals to 0 से, और उसके बाद हम बात करेंगे at any arbitrary instant of time t. So say let at t equals 0 we have a minimum value of r, that will be say r naught. It is the minimum value of r at t equals 0. Then at time t the value of this r is say r. Then for integrating in left hand side we get t is equal to integral from r naught to r dr by root 2/m e minus v minus l square by 2m r square. So we get t here as a function of r. So in this case, for solving this equation we need three constants of integration which are, एक तो r नोट हो गया आपको चाहिएगा, एक आपको e चाहिएगा, एक आपको l चाहिएगा. तो यहां पर जो आप t इन टर्म्स ऑफ r मालूम करेंगे, आप इसको इन्वर्ट भी कर सकते हैं. इन्वर्ट करने का अर्थ है
मुझे एक टर्म इसमें चाहिए, ये वाली, इसको छोड़ देता हूँ। तो पहले बच्चों हम इसको उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टा करने का अर्थ है कि हम r को इन टर्म्स ऑफ t भी यहाँ से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमें r इन टर्म्स ऑफ t मालूम हुआ, और इन टर्म्स ऑफ t का मतलब प्रोवाइडेड आपके पास कॉन्स्टेंट्स भी होने चाहिए तीनों, ठीक है। टोटल हमें कॉन्स्टेंट कितने चाहिए? हमें चाहिए 4, वी नीड 4 कॉन्स्टेंट्स। नाउ थीटा डॉट, अब इस थीटा डॉट कैन बी रिटन एज d theta by dt and that will be L upon m r square. And dear student, this can also be written as d theta is equal to L dt by m r square. And now dear student, again integrating on both sides, we have here theta is equal to L integral dt by m r square, where r is a function of time. And dear student, then we have an integral constant, this is 0 to t theta naught. So this one is our fourth constant of integration. So we had 2 second order differential equations and we need 4 initial conditions or 4 constants, and these constants are r naught, e, l, and the fourth constant is theta naught. So in this whole topic we have find out what are the equations of motion and what are the 2 first integrals of motion. There is also some different ways or other alternative ways to solve a conservative central force problem, which we are going to discuss in next lectures. Thanks for watching the video, bye बच्चों।